एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। Everest, my journey to the summit. एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिए। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। The Everest expedition team left Delhi for Kathmandu by air on March 7th. A strong advance party to the base camp had left long ahead of us, to clear a path of impassable snow. नमचे बाजार शेरपालन का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सगरपाथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। Namche Bazaar is one of the most important urban areas of Sherpaland. Most of the Sherpas are from this place and the villages around it. It was at Namche Bazaar, from where I gazed at the majestic Everest, popularly known as Sagarpatha in Nepalese. I like the name. एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल प्लूम देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। Looking up at Everest, I saw a huge plume of heavy snow that looked like a flag fluttering on the mountain peak. I was told that this phenomenon was caused by wind blowing at a speed of 150 kilometers or more around the upper surface of the summit, as the dry snow kept blowing on the mountain due to strong wind. बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डरने के लिए काफी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। This flag of ice could be 10 kilometers or more long. Everyone going to the summit had to brave these storms on the southeast hill, especially in inclement weather. This was enough to scare me, yet I was strangely drawn to Everest and wanted to face its toughest challenges. जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुंबू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धंसकने से लोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। When we reached Parij on March 26th, we received the sad news of the death of a Sherpa porter due to an avalanche.
On the left side of the expedition's route to the Khumbu icefall, a large ice floe had slid down from Lhotse. Of the party of 16 Sherpa porters, 1 was killed and 4 were injured. इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल कुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी-कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। Due to this news, seeing the depression on the faces of the members of the expedition, our leader Colonel Culler clarified that in a great expedition like Everest, one should accept the dangers and sometimes even death with a natural sense. उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आया। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंपेक 6000 मीटर, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहीं तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिह्नित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। Deputy Leader Premchand, who was leading the advance party, returned to Parich on March 26. He briefed us on the condition of our first major obstacle, the Khumbu icefall. He said that his team has cleared the way up to Camp I, 6,000 m, which is just above the snow cover. He also told that all major difficulties have been taken care of by making bridges, tying ropes, and marking the way with flags. उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना भी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के लिए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। He also pointed out that the glacier is a river of ice and that the ice continues to fall. Irregular and erratic changes in snow cover may nullify all the work done so far, and we may have to redo the clearing work. बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। Before reaching base camp, we received news of another death. A kitchen helper had died due to unaccustomed climate. Certainly, we were not walking in promising positions. एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। I had seen the summit of Everest twice before, but from a distance. On reaching the base camp on the second day, I saw Mount Everest and its other ranges.
I stood in a daze and gazed at the icy meandering river, surrounded by the heights of Everest, Lhotse, and Nutse. हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी-बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमावृत में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। Snow itself was a kind of chaotic falling of ice cubes. We were told that the flow of the glacier often stirred up the ice, which caused large blocks of ice to fall off immediately, and also suddenly assumed dangerous positions for other reasons. The mere thought of a crack falling directly on the ground and the crack turning into a deep fissure was terrifying. Even more terrifying was the knowledge that the snow would touch about 12 climbers and porters every day during our entire stay. दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। On the second day, we carried most of our newly arrived baggage halfway through the snow. Dr. Minu Mehta explained to us the construction of makeshift pools with aluminum ladders, the use of logs and ropes, the tying of ropes on the horizontal ice walls, and the engineering work of our advance team. तीसरा दिन हिमपात से कैंपेक तक सामान ढाकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता गोंगू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी-टॉकी था, जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंपेक पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं। The third day was determined to practice hauling through the snow to Camp Irita Gambu and I were climbing together. We had a walkie-talkie, through which we were giving information about our every move to the base camp. Colonel Cooler was delighted when we informed him of our arrival, as we were the only 2 women to reach Camp 1. अंगदोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंपचार लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे।
उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेर्पा कुली से बातचीत की जाए। Angdorji, Lopsang, and Gauguin-Bissau finally reached South Col, and on April 29, they set up Camp 4 at 7,900 meters. This was satisfactory progress. When I was at base camp in April, Tenzing came to visit us with his youngest daughter, Deki. He made it a point to talk to every member of the party and every Sherpa porter. जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेर्पा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेनजिंग मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। When I was at base camp in April, Tenzing came to visit us with his youngest daughter, Deki. He made it a point to talk to every member of the party and every Sherpa porter. When it was my turn, I introduced myself by saying that I am a complete novice and Everest is my first expedition. Tenzing told me that Everest was a first expedition for him too, but made it clear that the summit must be reached on the first attempt. 15 से 16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं ल्होत्से की बर्फोली सीधी दलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोपसांग, तशारिंग मेरे तंबू में थे। एनडी शेर्पा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेर्पा दूसरे तंबुओं में थे। On May 15th to 16th, 1984, the day of Buddha Purnima, I was at Camp 3 in a beautifully colored nylon tent set up on a snowy straight path at Lhotse. There were 10 more people in the camp. Lopsang, sharing were in my tent. ND. Sherpa and 8 other physically fit and high-altitude Sherpas were in other tents. मैं गहरी नींद में सोई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी, बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। I was fast asleep when I was suddenly woken up by something hard hitting the back of my head at around 12:30 a.m. and there was a loud bang as well. That's when I felt something cold, very heavy, running through my body, crushing me. I was also having difficulty in breathing. यह क्या हो गया था?
एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोथ से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बना गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस-नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। What had happened? A long block of ice had broken off from the Lhotse Glacier just above our camp and formed a huge snowpack. This giant mass of icicles, chunks of ice and frozen snow, with the speed of an express train and the rumbling roar, came crashing down the straight passageway, ravaging our camp. Literally everyone was hurt. It was a wonder that no one had died. If you like this video, please like, share and subscribe. अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को कई बार सुनें जब तक कि आप वीडियो के साथ साथ पाठ को धारा प्रवाह ढंग से सुनाने में सक्षम न हो जाएं। यदि आवश्यक हो तो कृपया वीडियो में सेटिंग्स पर जाएं और प्लेबैक गति कम करें। Please listen to the video many times until you are able to narrate the lesson fluently along with the video. If required, please go to settings in the video and reduce playback speed.